السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی بہت ہی چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے اور کوشش کروں گا کہ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر سکوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس طرف تو ہم شاید بات اپنی پوری نہ کر پائیں، بس اس ٹکڑے کو میں اٹھاتا ہوں، محمد رسول اللہ۔ یہ قرآن کریم کی اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس ٹکڑے کے اندر تین چیزیں بتائی گئی۔ پہلی چیز، نبی اکرم کا نام کیا ہے۔ دوسری چیز، آپ کا منصب اور آپ کی پوسٹ کیا ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ اس پوسٹ پر اور اس عہدے پر کس نے فائز کیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو ہم بزرگ مان لیں، مولانا جرجیز کو، اصغر صاحب کو، شیخ رضا کو۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو بزرگ بنا لیا، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو بزرگ بنائے۔ دونوں میں فرق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے بزرگ۔ وجہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی بزرگی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ عہدہ کیا ہے؟ آپ رسول ہیں۔ یہ اسی عہدے نے آپ کو بزرگ بنایا ہے۔ اور یہ عہدہ دیا کس نے؟ آپ رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ یعنی ہم نے اور آپ نے رسول نہیں بنایا، اللہ نے رسول بنایا۔ انسان کو جب بزرگی کے درجے پر فائز کرتا ہے تو بنانے والا بھی غلط ہو سکتا ہے، اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ جب کسی کو بزرگ بناتا ہے تو بنانے والا غلطی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو بنا رہا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ تمام اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس سے کوئی لغزش نہیں ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے انسانوں کے بنائے ہوئے بزرگوں میں اور اللہ کے بنائے ہوئے بزرگ میں۔ تو یہ تین حیثیتیں ہیں محمد رسول اللہ کی۔ محمد نام ہے، عہدہ رسول کا ہے، اور یہ رسالت اس بزرگی پر فائز کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اب دیکھیے قرآن کی دوسری آیت، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن کی اس آیت پر غور کیجیے۔ پہلے ہم نے یہ غور کر لیا کہ رسول ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی دو حیثیتیں بتا دیں۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور رسول تمہیں جن کاموں سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہاں رسول کی دو حیثیتیں بتائی گئی، من حیث الرسول اور من حیث البشر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ما اتاکم محمد فخذوہ، محمد تمہیں جو دے وہ لے لو، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ یہاں تو کہہ دیا محمد الرسول اللہ، محمد نام ہے، رسول عہدہ ہے۔ جب دو چیزیں ہیں تو حیثیتیں بھی دو ہیں۔ محمد جب صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اس کو دیکھا جائے گا کہ آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں، من حیث البشر یا من حیث الرسول۔ جب رسول ہونے کی حیثیت سے بولیں گے تو آپ کی کسی
किसी बात को छोड़ा नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानना पड़ेगी, चाहे वो हमारे फेवर में हो चाहे वो हमारे खिलाफ हो। रसूल होने की हैसियत से कोई बात छोड़ी नहीं जाएगी, लेकिन मिन हैसुल बशर अगर कोई काम या कोई चीज दें तो उसको छोड़ा भी जा सकता है और लिया भी जा सकता है। अब आइए एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना तशरीफ लाए, और मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज ये हैं, लम्मा कदिमा नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना तशरीफ लाए, वहुम याबिरून नखल, तो मदीने के लोग खजूर की कलमकारी किया करते थे, कलमकारी काश्त किया करते थे। तो उनकी आदत क्या थी कि वो खजूर को ऐसे ही जमीन में नहीं बोते थे, खजूर के पौधों को, खजूर की गुठली को, बल्कि वो गाभे जो होते थे तो वो क्या करते थे, ये नर खजूर का गाभा है, ये मादा खजूर का गाभा है। नर और मादा, जैसे इंसान और मर्द और औरत दो नर और मादा जब मिलते हैं तो बच्चे होते हैं, ऐसे ही वो क्या करते थे, नर खजूर अलग, मादा खजूर का गाभा अलग, नर और मादा खजूर को दोनों को मिलाकर जमीन में बोते थे। और उनका क्या रस्म थी, उनकी रस्म ये थी, ऐसा करेंगे तो खजूरें ज्यादा पैदा होंगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए और लोगों को ये करते हुए देखा तो आपने पूछा, माज़ा तस्नऊन, ये तुम क्या करते हो? तो उन लोगों ने क्या कहा, कुन्ना नस्नऊ, हम तो ऐसा ही करते चले आ रहे हैं। अल्लाह के नबी, हम तो ऐसा ही करते चले आ रहे हैं, हम तो नर खजूर और मादा खजूर दोनों के गाभों को मिलाकर जमीन के अंदर बोते हैं, और ऐसे ही हमारे बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ लम तफअलू लकान खैरन, अगर तुम ऐसा न करते तो अच्छा होता। ये क्या है कि नर बना लिया और मादा खजूर बना लिया, अगर तुम ऐसा न करते तो अच्छा होता। उन्होंने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, बड़ी शख्सियत कह रही, छोड़ दिया। अब उन्होंने एक तरफ से बोना शुरू कर दिया, न नर बनाया न मादा, ऐसे ही बो दिया। फनक़सत, मुस्लिम के अल्फाज है, उसी साल खजूरों में नुकसान हो गया, कम पैदा हुए। अब आप बताइए कि एक आदमी शादी के बाद 10 साल तक मस्जिद में जा रहा है और कह रहा है, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, बेटा दे दे, बेटा नहीं हो रहा है। किसी ने उसको मशवरा दिया, भाई मस्जिद में जाने से कहीं बेटा बेटी मिलता है, बेटा बेटी लेना तो इधर चले जाओ फला जगह। और वो चला गया और उसने एक ही बार कहा, तेरे दर पे आया हूं, बस इतना कहा, उसी साल उसको बेटा हो गया। तो क्या कहेगा वो, अरे वाकई इसमें ताकत है, वाकई ये है। तो वही चीज वो बरसों से ऐसा करते चले आ रहे, खजूर ज्यादा पैदा हो रही थी। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तुम ऐसा ना करते तो बेहतर होता। उन्होंने छोड़ दिया और उसी साल खजूरों में कमी पैदा हो गई, नुकसान हो गया। फज़करू, उन्होंने इसका जिक्र अल्लाह के रसूल से किया, अल्लाह के रसूल, हम बाप दादा के जमाने से जो करते चले आ रहे थे, जब वैसा करते थे तो खजूरें ज्यादा पैदा होती थी, और जब आपने कहा ऐसा न करते तो अच्छा होता, हमने छोड़ दिया, नुकसान हो गया। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, फरमाया नुकसान हो गया कहां? फरमाया मैंने तो आपके कारोबार में मशवरा दिया था, मैंने कोई कुरान और हदीस का कोई हुक्म नहीं लागू किया था, मैंने कोई अल्लाह का हुक्म नहीं सुनाया था, ये तो मेरी जाती राय और जाती मशवरा था। फिर आपने जो जुमले अदा किए वो जुमले आपकी हैसियत बतला रहे हैं। फरमाया, इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दीनिकुम फखुज़ूहु बिही, लोगों जब मैं तुम्हें तुम्हारे दीन का कोई मसला बताऊं, जब मैं तुम्हें तुम्हारे दीन की कोई हैसियत बताऊं, जब मैं तुम्हें तुम्हारे दीन का कोई मामला बताऊं, फखुज़ू बिही, तो तुम ले लिया करो। यानी जब मैं मिन हैज़ुर रसूल बोलूं तो उसको हर हाल में तुम्हें लेना पड़ेगा। वइज़ा अमरतु कुम बिशैइन मिन अम्रि दुनियाकुम फइन्नमा अना बशर, और जब मैं तुम्हें तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे दुनियावी मामलात में अगर मैं तुम्हें कोई मशवरा दूं, किसी बात का हुक्म दूं, तो मैं भी एक इंसान हूं। फइन्नमा अना बशर, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे मशवरे को ले भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। आपकी दो हैसियतें हैं, लेकिन जब मिन हैसुर रसूल जब कोई चीज दे तो उसको हर हाल में हमें और आपको लेना पड़ेगा। और फिर जब रसूल मिन हैसुर रसूल जब कोई चीज देंगे उसको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता, ये बात हमें और आपको जहन में रख लेना चाहिए। फिर बड़ी से बड़ी शख्सियतें, बड़े से बड़े बुजुर्ग, बड़े से बड़े उलमा, बड़े से बड़े मौलवी, अगर उनकी बात नबी की बात से टकरा जाए तो फिर रसूल की बात को लिया जाएगा और नबी की बात को लिया जाएगा। लेकिन
नबी के बाद, नबी के अलावा जिनकी बातें नबी से टकरा रही हैं, फिर उनकी बात को नहीं लिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। इस सिलसिले में बड़े बड़े अजिल्ले सहाबा की दलीलें मौजूद हैं। और आइए मैं एक दलील आपकी तरफ पेश करता हूं। बुखारी के सफात पर इस मंजर को देखिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सफर में है और हजरत अम्मार भी एक सफर में है, दोनों सफर में हैं और दोनों का गुजर एक जंगल से हुआ, बियाबान जंगल से हो रहा है, रात हो गई, खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दोनों कदीम सहाबियों ने यह सोचा इसी जंगल में कयाम कर लिया जाए, रात यहां गुजार ली जाए, सुबह होगी तो शहर की तरफ निकलेंगे। हजरत उमर फारूक और हजरत अम्मार दोनों इसी जंगल में आराम करने लगते हैं, दोनों सो जाते हैं। फजर की नमाज पढ़ने के लिए दोनों सहाबी उठते हैं। बुखारी शरीफ के सफात पर यह मंजर देखिए, हजरत उमर भी फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे हैं। हजरत उमर और हजरत अम्मार ये दोनों जब सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं तो इत्तेफाक देखिए दोनों ही सहाबी फजर की नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहे। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, दोनों ही जुम्बी हो गए। इंसान थे, फितरत सबके साथ लगी हुई है, उनको भी जनाबत लायक हो गई। हजरत अम्मार ने कहा मैं क्या करूं? हजरत उमर ने कहा तुम अपनी कहते हो, मेरा भी यही हाल है, क्या करूं? पानी नहीं है, अब क्या किया जाए? हजरत अम्मार ने कहा मुझे मसला मालूम है। हजरत उमर ने कहा अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला मालूम है और नबी अकरम की तरफ से कोई चीज आई हुई तो मुझे भी बताओ, मुझे नहीं मालूम। हजरत अम्मार ने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया और कुरान की आयत भी मौजूद है, फ़इल्लम तजिदिल मा फ़तयम्ममू सईदा, जब तुम्हें वुजू के लिए पानी न मिले तो तुम तयम्मुम कर लिया करो। हजरत उमर ने फरमाया आय अम्मार, ये तो वुजू के लिए तयम्मुम का मामला है, हमें वुजू के लिए नहीं, हमें तो गुस्ल की जरूरत पड़ी है। कुरान की आयत हमें यह बतला रही है और नबी अकरम का फरमान भी हमें यह बतला रहा है, जब वुजू के लिए पानी न मिले तो तयम्मुम कर लो, लेकिन हमें वुजू की जरूरत नहीं है, हमें तो गुस्ल की जरूरत है, हमें तो जनाबत लायक हुई है। अब गुस्ल के लिए कोई वजह हो तो बताओ, कोई मसला मालूम हो तो बताओ। हजरत अम्मार ने कहा नहीं मुझे यही मालूम है। हजरत उमर ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं ये तो वुजू का मामला, हमें गुस्ल की जरूरत है। तो हजरत अम्मार ने कहा तो अब तो उस जमाने में टेलीफोन भी नहीं था, फौरन रात के 2 बजे मालूम कर लो जल्दी साहब बच्चा पैदा हुआ, कल क्या नाम रखूं। उस जमाने में तो टेलीफोन भी नहीं था, ये तार का भी जमाना नहीं था, चलो एक हफ्ते में मसले का जवाब आ जाएगा, लेटर का भी जमाना नहीं था। अब क्या किया जाए, सिवाय इसके कि इज्तिहाद और सिवाय इसके कि कयास लगाया जाए, इसके अलावा क्या रास्ता था? हजरत अम्मार ने कहा तो इस पर कयास कर लेते हैं ना, वुजू की जरूरत है तो तयम्मुम, छोटा तयम्मुम कर लेते हैं, दोनों हाथ जमीन पे मारे, चेहरे पे मल्ली, हाथ पे मल्ली, हो गया तयम्मुम। लेकिन हमें गुस्ल की जरूरत पड़ी है तो बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। तो हजरत उमर फारूक ने कहा बड़ा तयम्मुम क्या हुआ? का बड़ा तयम्मुम ये हुआ कि हम लोग कपड़े उतारते हैं और आप उधर चले जाइए, मैं इधर कपड़े उतार के मिट्टी में लौटता हूं और उसके बाद जब मैं कपड़े पहन लूं तो आप मिट्टी में लौट जाइए। पूरा का पूरा मिट्टी में लौटना, कपड़े उतार कर जिस्म के पूरे हिस्से पे मिट्टी लगा लेना, मिट्टी में लौटना। हजरत उमर फारूक ने कहा ना, ये तो तुम एक नई चीज निकाल रहे हो, मुझे खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम के अंदर नई चीज निकालने की वजह से कहीं हम बिदात में मुब्तला ना हो जाए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हजरत अम्मार ने कहा मैं ऐसा करूंगा। हजरत उमर ने कहा तुम्हारा कयास, तुम्हारा इज्तिहाद अगर ये कहता तो करो। कहा तुम क्या करोगे? कहा मैं पानी का इंतजार करूंगा, सुबह मिलेगा, शहर में मिलेगा, सबसे पहले मैं गुस्ल करूंगा और जब पानी मिलेगा गुस्ल करूंगा, उसी वक्त में नमाज पढ़ूंगा। हजरत अम्मार कहते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, तमर्रगतु कमा तमर्रगु दाब्बा, मैं जमीन के ऊपर ऐसा उलट पलट किया, ऐसा उलट पलट, ऐसा जमीन के ऊपर लौटा जैसे चौपाया जमीन के ऊपर लौटता है। उन्होंने नमाज पढ़ ली। हजरत उमर फारूक शहर में चले गए, सुबह पानी मिला, तब उन्होंने उसूल करके नमाज की पढ़ी, यानी कज़ा।
جب دونوں کا سفر ختم ہوا اور دونوں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے 2 4 5 6 دن کے بعد، تو دونوں نے اپنے اپنے سفر کا حال پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایسا ہو گیا تھا؟ کہا پھر کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی ان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا۔ کہا